Hello everyone. In today's class, we are going to discuss and understand what are the various factors that determine pro-social behavior. What are the factors which increases or decreases the tendency of helping nature, which increases or decreases the tendency to help others. It has been observed, beta, that there are some people who receive help from all quarters, and there are some people who don't receive help, and in some situations help reaches them, and in some situations nobody even knows that something wrong has happened and people die waiting for somebody to help them. So there are various situations and various factors. uh, we will discuss what are the various factors which increases the likelihood, the increases the chances of a victim being helped, or people have a more tendency towards helping. Number one, beta, if we will see, we understand that there are some people who are always helping. Their personality is such, so we call them altruistic personality people. We are going to discuss such people differently in the next topic. So here we say that there are people who are always ready. So ऐसे इंसान दुनिया में होते हैं जो हमेशा सबकी हेल्प करना चाहते हैं. तो एक फैक्टर जो है कि अगर किसी भी ऐसे एक्सीडेंट में, किसी भी ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे कोई ऑल्ट्रिस्टिक पर्सनैलिटी जो है बेटा वो वहाँ पे है बाई चांस, सो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो विक्टिम है उसकी हेल्प हो जाए. सो नंबर वन पॉइंट, प्लीज़ नोट डाउन, दिस इज ऑल्ट्रिस्टिक personality. The presence of the altruistic personality increases the chances of an help provided. Number two, beta, helping people are similar to ourselves. We have a tendency to help people who are a family, to help people we are attached with, our siblings, our friends. तो जब हमें पता चलता है, जहाँ हमें दर्द होता है कि किसी अपने को कुछ हो गया है, सो वहाँ पे जो है वो चांसेस जो हैं बेटा वो बढ़ जाते हैं. सो नंबर टू पॉइंट, वी विल ऑल्ट्रिस्टिक पर्सनैलिटी, हमने बात की कि कुछ पर्सनैलिटीज़ ही वैसी हैं जो बहुत हेल्पिंग होती हैं, और अगर वो पर्सनैलिटीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है तो हेल्प प्रोवाइड होगी. नंबर टू, हमने बात की बेटा कि देयर आर वी आर इन अ टेंडेंसी टू हेल्प द पीपल who are similar to us, right? So similar means your family, but sometimes similar tendencies we can correlate with strangers also. For example, एक बूढ़ा खड़ा है और उसको दूसरा ओल्ड पर्सन वहाँ पे दिखता है, तो उसको कुछ अपनापन लगता है, उसको ये लगता है कि इवन आई एम ओल्ड, कल मेरे साथ भी ये हो सकता है, मैं भी गिर सकता हूँ. और इस किस्म से जो बिहेवियर है वो सिमिलर होगा कि दोनों का एज जो है, दे आर ओल्ड पीपल, दे आर गोइंग टू हेल्प. Second, like for example, nationality, if you find the other person is also India, और ऐसी helping attitude देखा गया है foreign में बेटा. इंडिया में तो everybody is Indian. If you go to some other country and you see somebody जो आपकी शक्ल जैसा दिख रहा है, आपकी country जैसा दिख रहा है, so you approach that person to help. और अगर आपको पता चल जाता है कि वो आप ही की country का इंसान है, so nationality is the second. Then there can be other roles also. If you find आप किसी भी किस्म की सिमिलरिटी बेटा, आपका नेशन सेम है, आपकी एज सेम है, आपकी सोशल क्लास सेम है, आपका कल्चर सेम है, आपका रिलीजन सेम है, तो जहाँ जहाँ आपको सिमिलरिटी दिखती है डुअर और जिसके ऊपर हम कर रहे हैं, उन दोनों में विक्टिम और हेल्पर जो है उसके बीच में जितनी भी सिमिलरिटी है तो चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं. देन बेटा, एक्सपोजर टू प्रो सोशल मॉडल्स लाइव और इलेक्ट्रॉनिक. यू मस्ट बी सीइंग कि एक एक्सीडेंट हुआ है या कहीं आग लगी है, सो बहुत सारे लोग जो हैं वो
वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए. सो बाई पासर्स, बाई स्टैंडर्स, यू विल फाइंड एम्पल. बट सडनली उन बाई स्टैंडर्स में से अगर एक इंसान आगे बढ़ के हेल्प करना शुरू कर देता है, तो ये माना गया है कि ये एक जैसे आग की तरह जैसे एक छुआछूत फैलती है और एक दूसरे से. सो उसी तरीके से पहल करने की देर है. इफ़ देयर इज़ अ पर्सन who is ready to help, suddenly you will find 5 people, 10 people and 15 people, and everybody will start helping. Why? Because the first person has acted as a social model. So we say exposure to pro-social model, live or electronic. आप ये पॉइंट्स प्लीज़ लिखते जाएं बेटा. एक्सपोजर टू प्रो सोशल मॉडल, लाइव और इलेक्ट्रॉनिक. सो लाइव मीन्स वहीं खड़ा है साइट पे जहाँ पे घटना हो रही है, और वहाँ पे खड़े खड़े ही उसने जब पहल किया तो वो एक सोशल मॉडल बन गया, और उसको देख के बहुत सारे और लोग आगे हेल्प. सो दिस इंक्रीजेज द चांसेस टू help. Electronic means like through some ads, and there is an advertisement कि जिसमें कोई बुजुर्ग खड़ा है तो आप ट्रेन में कोई इसको सीट दे रहा है, कोई किसी को बचा रहा है. सो ऐसी जब एडवर्टीजमेंट जो है वो कंट्री बार बार करेगी तो सिटीजन्स में बहुत हद तक आदत बन जाती है कि वो हेल्प करे. Third beta, playing pro-social video games. It has been noted that video games mostly aggressive होती हैं, but then there are totally contrast video games जिसमें एक करेक्टर दूसरे करेक्टर की बार बार हेल्प करता है, and then there becomes a chain of helping in that particular video game. So it has been observed and it has been research found that those who tend to see aggressive videos, they don't help people, and those जो pro-social videos encourage करते हैं, और स्पेशली बच्चों के लिए जैसे इंडिया में छोटा भीम और चुटकी और ये सब, दे आर हेल्पिंग पीपल. तो ऐसा वीडियोस जो है वो बहुत फेमस हो गया है. जो इस किस्म से जो हम वीडियो गेम्स, तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें 10 लोगों ने एग्रेसिव वीडियो देखा, 10 सोशल ने न्यूट्रल वीडियो देखा, एंड देयर वर 10 पीपल who watched और who played pro social video game. एंड उसके बाद में दे ऑल 30 पीपल, 10 फ्रॉम न्यूट्रल, 10 फ्रॉम प्रो सोशल एंड 10 फ्रॉम एग्रेसिव, उनको एक एक सीन में इकट्ठा किया गया. सो इट हैड बीन ऑब्जर्व कि जिन्होंने प्रो सोशल बिहेवियर देखा था का वीडियो खेला था, उन्होंने ज़्यादा हेल्पिंग एटीट्यूड दिखाया. सो नंबर 1 पॉइंट वी सेड इट्स द ऑल्ट्रिस्टिक पर्सनैलिटी. नंबर 2 वी सेड हेल्पिंग पीपल सिमिलर टू आवर सेल्स. नंबर 3 बेटा एक्सपोजर टू प्रो सोशल मॉडल, लाइव और electronic. Then we talked about 5th point was playing pro-social video games, and 6th point we can write feelings that reduce our faces on ourselves. वो feelings जो आपको छोटा, faces on ourselves means कि जो आपको आपके चेहरों दिखा देते हैं और आपको अपना आप कितना छोटा लगता है. For example, you go and watch some Amazon का जंगल, you go and watch some Niagara Fall, और you go and watch some beautiful nature का जो setup है जहाँ आपका मन बहुत ही खुश हो जाता है. You say wow, such an amazing scenic beauty, and where you forget about yourself and your worries. At that time when you have that feeling of comes from you, and you are mesmerized by the beauty and by the presence of God and the nature, and there you feel yourself, आपको अपना आप बहुत छोटा लगना शुरू हो जाता है. और ऐसी टेंडेंसीज में when you feel you are not that worthy, you have not helped, और आप अपनी ही वरीज के साथ ही रोते रहते हो, और नेचर कितना बड़ी है, नेचर कितनी ड्रास्टिक है, और जब ये चेंज होती है तो तब इंसान ख़त्म हो जाते हैं. सो दैट टाइम व्हेन यू आर एक्सपोज टू सच ब्यूटीफुल प्लेसेस, सच ब्यूटीफुल काइंड ऑफ मेस्मराइजिंग, जैसे मैंने कहा नाइगेरिया फॉल, और यू गो अमेज़ॉन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ के जंगल में आपको वो सब दिखता है, तो उस टाइम आपको अपना आप छोटा नज़र आना शुरू हो जाता है. हम आपकी वरीज जिसकी वजह से आप हमेशा रोते रहते हैं वो छोटी नज़र आना शुरू हो जाती हैं, and you increase the likelihood and the tendency to help people more. You also want to make yourself feel special. जैसे एक पेड़ फलों से लदा है and people are eating, और एक झरना चल रहा है जिसमें बहुत सारा पानी है. So ऐसी एक्सपोजर में you have mindfulness, you have compassion for others, and you tend to help others. So this was, again I'll repeat the point,
feelings that reduce our focus on ourselves. हम हमेशा अपने पे फोकस करते हैं और वो फीलिंग्स जब कहीं पे इनकलकेट हो जाएं जो हमारा जो रिड्यूस करते हैं अपना फोकस, सेल्फ फोकस, और हम नज़ारों को देखें, हम दुनिया को देखें, तो उस टाइम में हमारा ये चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. देन बेटा social class. Do people who have less give more? So it has been seen that low social status class have great compassion for others, and center mein compassion has, they have great compassion for others, and from this great compassion they have more tendency to behave. So compassion, it's a feeling from fellow humans. So automatically यहाँ से यहाँ chances बढ़ जाते हैं कि आपने खुद गरीबी देखी है, आपने खुद गुर्बत देखी है, आपको पैसे की वैल्यू पता है, आपको ह्यूमैनिटी का टच है, बिकॉज अब बड़े बड़े घरों में कन्फाइंड नहीं रहते हो, आप लोगों के बीच में रहते हो, आप लाइफ को ईजिली देखते हो. सो यू इंक्रीज मोर कंपैशन एंड मोर चांसेस आर दैट social class at the lower level have more compassion and more giving attitude. Similarly, those who have high everything, they cannot understand, they have less compassion towards people because वो अपनी बड़ी गाड़ियों में, अपने बड़े घरों से ही निकलते हैं, उन्होंने दुनिया नहीं देखी होती, और उसके साथ क्योंकि वो दुनिया से इतना मिलते ही नहीं हैं, उनको उतना दर्द ही नहीं होता. So mostly chances are that they have less chances or the reduced chances to help other. Then you can also add points of gender, that in some cultures women are more helping, and in some cultures men are more helping, but in everything gender has no role to play, both can help. Then you can say there are various social factors कि किसी की हेल्प करने से, फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 में मुंबई में स्पेशली देखा गया कि पीपल स्टार्टेड किलिंग डॉग्स, उनको पत्थर मारना, और उनको ही नहीं बहुत सारे ऐसे किस्से देखे कि जो एनिमल्स को फीड कर रहे हैं, जो उनको हेल्प करने के लिए सोसाइटी से बाहर जाते हैं, उन पे गेट बंद किए गए, चौकीदार्स को बोला गया कि इनको हेल्प नहीं करो, किराए वाले लोगों को बाहर निकाला गया, और रीज़न सिर्फ ये था बिकॉज दे वर मूविंग आउट टू हेल्प एनिमल्स. सो समटाइम्स सोशल फैक्टर्स ऑल्सो play a role कि वो society कैसी है, whether they want to help, whether they don't want to help. Then we have situational dispositional factors. Situations ऐसी हो जाती है, for example आप अकेले ही हो, कोई दूसरा है ही नहीं हेल्प करने के लिए, so उस situation में अचानक chances होते हैं कि you know कि it is only you who has to provide help, so you don't hesitate. But जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे आपको लगता है कि कोई दूसरा कर देगा, so you don't indulge. So these were all the factors which were related to the helping nature. Thank you so much. I hope you have understood and liked these points. Thank you, Vita.